तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं दोबारा से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस छोटे से प्रयास के साथ, छोटे से एक YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है ओंकार मोटिवेशंस एंड ट्रेनिंग्स। आशा है जैसे मुझे पहले आप लोगों का प्यार मिलता रहा है, अब भी मिलेगा और आप आज के इस छोटे से एपिसोड को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट्स करेंगे एंड यू विल ऑल्सो सब्सक्राइब इन लार्ज नंबर्स। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यह एक छोटे से घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है और जैसा कि हम सुनते हैं कि लाइफ कंसिस्ट not problems, but there are lessons everywhere. You have to be very alert, you have to be very observant, you have to be very much awake if you want to observe and observe the cosmic design and be blessed with that celestial nature of the things happening around you. You will develop, including myself, a very, very positive, vibrant and useful perspective towards life. And of course, as our seers have told us, that life is nothing but a journey, not only of this birth, but years and years and years of different births and rebirths. The sole aim of the life, according to our great seers, is that you should make progress in each life assigned to you for a particular period of time. God has given you and to me, to and every creature on this earth, the whole potential in terms of various senses, in terms of karmas of past life also, and so many other things in terms of abundance in nature. But at the same time, God has been very unbiased and very neutral when it comes to paying back for any person, any living, any non-living, any creature on this earth, his or her karmas. And that brings us to a concluding point that our life destiny is not decided by others. It is not at all. It is connected, interrelated with all the human beings, with all the nature elements, with all the cosmic energies. But at the same time, it is largely governed by individual perspective on life, individual karma in life. We can always
make a positive impact on ourselves and around our vicinity of the circumstances, and even people have been able to make larger impact on the universe as such, on the larger universe, larger galaxies, and that's why they are called rishis or Brahma rishis in our ancient wisdom. They've been given different upadhis like Paramhans. Paramhans is not merely a name addition to given Swami Ramakrishna Paramhans. He has achieved through his karmas, through his tapasya, through his life's example, and Paramhansa is the one who is bestowed with the wisdom of हंसा. हंसा कौन है? वो जो नीर शीर विवेकी है, वो जो सत्य को असत से अलग करने की क्षमता रखता है, और उसके सामने इस संसार के सारे सत्य, सारे तथ्य व्याप्त हैं और ज्ञात है. तो चलिए शुरुआत करते हैं जो उस छोटे से इंसिडेंट की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. एक दिन शाम के वक्त मैं और मेरी छोटी बिटिया एक्टिवा स्कूटर पर एक ओवरब्रिज क्रॉस करने के लिए हम उसकी तरफ बढ़े. जैसे ही हम बढ़े तो रेड लाइट पर हमारी गाड़ी रुक जाती है और सड़क के किनारे ही गुब्बारे बेचने वाले 2, 3, 4 बालक, लड़कियां छोटी छोटी खड़ी हुई थी. तो हमारी अरुणिमा ने बोला कि पापा आई नीड अ बलून. मैंने आवाज लगाई उस बच्चे को. वो बच्चा दौड़ के आ गया. एक बड़ी सी 8-10 साल की लड़की हाथ में बहुत सारे गुब्बारे लिए हुए हमारी तरफ बढ़ गई. जैसे ही वो बढ़ी तो मैंने उस लड़की को आवाज लगाई. तो वो 7-8 साल की एक लड़की गुब्बारे लेकर आ गई. उसके साथ साथ एक छोटी सी गुड़िया, शायद उम्र रही होगी 4 या 5 साल. अवस्था दोनों की परिलक्षित थी. दरिद्रता, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत कुछ धन कमाने की लालसा, छोटे छोटे प्रयासों द्वारा एक गुब्बारा वो 10 रुपए का उन्होंने हमें दे दिया, बड़ी लड़की ने. अब देने के बाद मैंने उसको 10 रुपए दिए और वो गुड़िया अरुणिमा ने उसको पकड़ लिया. हम अब रेड लाइट की वेट करने लगे कि हम चलें. पर वो जो छोटी गुड़िया साथ में आई थी 4 या 5 साल की, उसको मुझे लगा कि मुझे उसके लिए उसे कुछ देना चाहिए. तो मैंने 10 रुपए का एक नोट और निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया. अब कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है. उस गुड़िया ने वो 10 रुपए मुझसे नहीं लिए, पर इसके साथ ही साथ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुब्बारा अरुणिमा की तरफ बढ़ा दिया कि ये भी ले लो. और अरुणिमा ने बोला कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, आई हैव टेकन ऑलरेडी 1, तो मेरे को दूसरा गुब्बारा नहीं चाहिए. तो फिर उस लड़की ने वो गुब्बारा मेरे हाथ में पकड़ाया, मेरे ही हाथ से 10 रुपए का नोट लिया और चली गई.
मुझे जो महसूस हुआ कि ये कन्या जो 4 या 5 साल की है, इतनी पॉवर्टी में रहने के बावजूद 10 रुपए तक लेने का, जो कि उसके नहीं है, जो कि उसकी मेहनत के नहीं है, जो उसके कर्मों के नहीं है, उसके माता पिता ने, आप सोचिए कि उसको कैसे संस्कार दिए। हाँ, जैसे ही उसने वो गुब्बारा मुझे दे दिया तो उसने तुरंत वो 10 रुपए मुझसे ले लिए। क्यों? क्योंकि अब वो कर्म द्वारा अर्जित धन था, वो किसी के द्वारा दिया हुआ दान नहीं था। अब वो 10 रुपए की जो प्रवृत्ति थी वो दान से हटकर एक फीस हो गई थी, एक मेहनताना हो गया था। अब देखिए, इसके और आगे बढ़ते हैं। वो रेड लाइट पर हम, गुड़िया उधर की चली गई, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई, हम लोग आगे बढ़ गए। जब आप ओवरब्रिज क्रॉस करते हैं तो आपको एक रेड लाइट तो सड़क से ओवरब्रिज के नीचे जाने के लिए यूज करनी पड़ती है, दूसरी रेड लाइट कभी कभी आगे वाली रोड के लिए, जो दूसरी तरफ का रोड है उसके लिए भी आ जाती है। तो हम जैसे ही गए तो आगे तक जाते जाते हमारे लिए दूसरी रेड लाइट भी तैयार थी। तो इसी दौरान क्या हुआ कि अरुणिमा के हाथ से एक गुब्बारा छूट गया और वो नीचे गिर गया। बड़ी सामान्य सी बात है, पर क्योंकि कुछ लोगों की गाड़ियां इधर से हमारे राइट हैंड साइड से बढ़ रही थी, तो वो गुब्बारा उन गाड़ियों की हवा से थोड़ा 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 आगे जाने लगा। अब अरुणिमा ने बोला कि डैडी, पापा, आई नीड दैट बलून। पर मैं एक्टिवा पर था और वो ऐसी अवस्था थी जिसमें कि गाड़ियां मेरे पीछे से आ रही थी और दे वर गोइंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। मैंने उस वक्त एक द्वंद्व की स्थिति में आ गया कि अब मैं अरुणिमा को और एक्टिवा को साइड में खड़ा करूं या यहीं पर खड़ा कर कर स्टैंड लगाकर और बलून को कलेक्ट करने जाऊं। तो ऊहापोह की स्थिति थी कि अब वो बलून भी देना है, अरुणिमा को चाहिए भी सही, दूसरा बलून उसके हाथ में है। तो थोड़ा सा आई टुक ए पॉज, ऐसे डोके बेटा करते हैं कुछ ना कुछ। अब देखिए, कहानी नया मोड़ लेती है। राइट टर्न वाली गाड़ियों का अब इंडिकेशन बंद हो गया। एक गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर पे रुकती है। उस गाड़ी में, स्विफ्ट में, एक 30-35 साल का युवा गाड़ी बंद करता है, निकलता है। इस दौरान वो जो बलून है वो हवा के झोंके खा खा के वो सड़क के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। और मैं इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे था कि बलून इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अरुणिमा इज विद मी, तो मुझे अरुणिमा को छोड़ के सड़क के बीच में नहीं जाना बलून को कलेक्ट करने के लिए। तो वो जो बच्चा, स्विफ्ट गाड़ी रुकी, वो गया सड़क के बीचों बीच, उसने ट्रैफिक को भी साइड में हाथ दिया, रोका उनको, और उसके बाद वो बलून उठाया। नाउ दिस वाज a turning point. He came and he gave us the balloon. I said, Arunima, look how great uncle is. So Arunima said thank you to that fellow, and he just, reverting back with a smile, he again went to his car, sat there and drove. अब ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अगर आप गौर से देखें तो ये कहानी हमें बहुत सारे सबक सिखा जाती है। कुछ मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी, दिल को छूने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हों तो मुझे अपने लार्जर ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लेना चाहिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब शुरुआत होती है कि साहब इस छोटे से इंसिडेंट से, जिसमें कि एक गरीब लड़की, एक मध्यम या अपर मीडियम क्लास से जो लड़का है, उसका जेस्चर, और एक गुड़िया का जेस्चर जो कि बहुत गरीबी की अवस्था में है। दोनों मेल खाते हैं, दोनों सिमिलर हैं।
लेसन्स इस स्टोरी से ये निकलते हैं, इस इंसिडेंट से ये निकलते हैं कि संस्कार, चाहे वो पूर्व जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, अमीरी से संबंधित, गरीबी से संबंधित नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस छोटी सी 4 या 5 साल की गुड़िया में इतने संस्कार भरे हुए हैं कि वो एक 10 रुपए का गुब्बारा भी लेने से पहले 10 बार सोचती है। दूसरी बात, स्वाभिमान और अभिमान में फर्क है। दोनों व्यक्तियों ने, उस लड़के ने भी और उस छोटी सी 4-5 साल की गुड़िया में भी इतना स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है कि जिस वस्तु पर मेरा हक नहीं है, जिस वस्तु पर मैंने अपने कर्म का योगदान नहीं दिया, वो वस्तु मेरे लिए नहीं है। इस लेवल की सेंसिटिविटी, संवेदना जिस मानव में आ गई और उससे भी उत्कृष्ट लेवल की संवेदना आ गई, तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति का, उस जीव का परिष्कार, उत्थान, उत्कृष्टता की तरफ जाना, एक्सीलेंस की तरफ जाना निश्चय है। और दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट होप ऑल्सो, कि सत्य की विजय सिर्फ दिवाली, दशहरा या किसी और मौके पर नहीं होती है। सत्य की विजय रोज होती है, रोज रावण जलते हैं, रोज राम की विजय होती है, रोज राम लीला होती है। और उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म में, आप एक क्षण में, आप एक दिन में, आप एक घंटे में, हो सकता है आपको लगे कि जो ये कर्म या जो ये रिएक्शन या ये सिचुएशन जो हमें लगती है कि साहब ये हमारे लिए गलत है, हमारे लिए ठीक नहीं है, पर वो सारी कंडीशंस, वो सारी सिचुएशंस आपके मानस को रिफाइन करने के लिए घटित होती है। आप अपने वातावरण के निर्माता नहीं हैं, पर और आपका जो वातावरण है, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच यू टॉक अबाउट, इज नॉट कंट्रोलेबल बाय अस, पर जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेस हैं, योर रिएक्शन, योर यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेस, योर इनर बेंट ऑफ माइंड, योर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, these are under, these can be controlled by you. So you must think about that. You must think about your reactions to the situations. Situations might not change, but definitely you can change your reactions from negative to positive. When that small girl of 4 or 5 years can refuse to take 10 rupees from a stranger, then are we, मैं अपने ऊपर भी बात करता हूँ कि are we having that kind of clarity of thought in our mind? Are we doing our karmas with that spirit? So we have to go ahead and we have to think about our karmas in day-to-day life with lot of awareness, lot of awakeness, and we have to continuously change. मैं अपने ऊपर भी बात करता हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो I give reaffirmative signs to myself also. I get reinforced, I get lot of positive vibes also through uttering all these things. I'm a very small teacher, but I try to teach whatever has been given to me, bestowed upon to me by great rishis of India and by my worthy teachers. So friends,
If you like this video, I would like you to subscribe it in large numbers, comment on this also, and if you like to listen any particular topic, any other things of the similar nature, I would like to have your suggestions also, your comments also. With this, I sign off for today, and we'll meet again very soon. Thank you very much. Thank you. Namaskar.